لیکن پادری صاحب آپ پہ سرمن نہیں دیتے، اس کے اندر سے خدا کا کلام جو ہے آپ کے اس گناہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کتنی جانے کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے کلام خدا کے لیے زوردار تالی بجائیں۔ آج ہم بپتسمہ کے تعلق سے سیکھیں گے، بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں سرمن کے آخر پہ جب ہم کلام سنتے ہیں تو کافی دفعہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ جنہوں نے بپتسمے نہیں لیے وہ ضرور ہے کہ بپتسمے کے اس پروسیس کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ بپتسمہ جو ہے یہ کوئی ریچول نہیں ہے یا پھر ایک رسم نہیں ہے، دھیان سے بات کو سنیے گا۔ بپتسمہ جو ہے یہ ایک رسم نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرما برداری ہے۔ فرما برداری کس کی؟ خداوند یسوع مسیح کی، کیونکہ یسوع نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر یہ صرف رسم ہوتی تو ہم اس سے کنارہ کر سکتے تھے یا پھر اسے کریں یا نہ کریں، یہ ہمارے پاس آپشن تھی۔ بات آتی ہے فرما برداری کی، جب بات آتی ہے کہنا ماننے کی، جب بات آتی ہے خدا کے کلام کو پورا کرنے کی، تو وہاں پر اسے کرنا لازم قرار دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ پھر اسے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم کسی انسان کی نافرمانی نہیں کر رہے بلکہ کس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مجھے بار بار اس بات کو اناؤنس کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور نہ ہی مجھے بپتسمے دینے کا شوق ہے کہ میں پکڑوں اور بپتسمے دوں۔ خدا کا شکر ہے پچھلے 16-17 سالوں میں بڑے بپتسمے دیے ہیں، لیکن اس پر زور اس لیے دیتا ہوں کیونکہ خدا کا خادم ہوتے ہوئے اور انجیل کی اس خوشخبری کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں، اور خدا کا کلام مجھے اس بات کو سکھانے کی تعلیم دیتا ہے، مجھے بار بار زور دیتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے توبہ نہیں کی، جنہوں نے ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا، اس فرما برداری کو پورا نہیں کیا، ان کو تعلیم دے کہ وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیں۔ اس لیے پچھلے کچھ ہفتوں میں نے پرماننٹ جیسے ابھی سرمن دینے جا رہا ہوں اس طرح سے سرمن نہیں دیا، لیکن میں نے بار بار اس بات کے لیے آپ لوگوں کو فورسفلی کہا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک بپتسمے نہیں لیے وہ بپتسمے لینا شروع کریں۔ ایک اور بات ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھ سے ہی بپتسمہ لینا ہے، جس سے آپ کا دل کرے آپ اس سے جا کر بپتسمہ لے سکتے ہیں، لیکن اس فرما برداری کو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پورا کریں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے اور اس کے حکم کو پورا کرنا ہم پر فرض ہے۔ بائبل میں سے آج ہم سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ بپتسمہ جو ہے آخر یہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے، اور پھر کس کو چاہیے کہ وہ بپتسمہ لے۔ کیونکہ بعض اوقات کئی لوگ بپتسمہ لینا چاہتے ہیں لیکن شاید وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب میں پرماننٹلی گناہ کرنا چھوڑ دوں گا پھر میں بپتسمہ لوں گا، کیونکہ بپتسمہ لینے کے بعد پاسبان بھی کہتے ہیں اور بائبل کے اندر بھی لکھا ہے کہ جب تو توبہ کر چکے تو پھر توبہ کرنے کے بعد دوبارہ سے گناہ کی طرف مائل نہیں ہونا۔ ایک وقت تھا کہ جب یوحنا نبی جو ہیں
जो बपतिस्मा देते थे दरियाई यर्दन के अंदर खड़े होकर, बाइबल के अंदर लिखा है कि वो जब दरियाई यर्दन में खड़े होकर बपतिस्मा दे रहे थे तो उन्होंने दूर से देखा कि शरअ के आलिम जो शरीयत को समझते थे, जो अच्छे तरीके से कलाम की बातों को समझते थे, जब यूहन्ना नबी ने देखा कि वो बपतिस्मा लेने के लिए मेरी तरफ आ रहे हैं, और जैसे ही वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास पहुंचे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बड़े ही सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए और कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। अगले जो अल्फाज थे ये बड़े ही जो है वो सोचने वाले हैं और बड़े ध्यान से सुनने और समझने वाले हैं। जब उसने कहा कि आने वाले गजब से भागो, फिर उसके बाद उसने कहा बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। ये बड़े ही अहम अल्फाज हैं जिन्हें अक्सर वो लोग भी भूले बैठे हैं जिन्होंने बपतिस्मे ले लिए हैं, जिन्होंने बपतिस्मे ले लिए हैं। क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल हमें तौबा के मुआफिक फल लाने की तालीम देती है। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उस वक्त हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, कहते हैं कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे यीशु का लहू ही बचा सकता है, और मैं तेरे बेटे यीशु की बात को मानते हुए उसकी फरमाबरदारी करते हुए देख आज मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मैं तौबा करता हूं और फिर आइंदा मैं गुनाह की तरफ वापस नहीं जाऊंगा। मैं आइंदा को तुझ में रहकर जिंदगी बसर करूंगा। और जब हम ये इकरार करते हैं तो ये इकरार जो है बज़ाहरन देखते हुए जाहिरी तौर पर तो खादिम के रूबरू किया जाता है, कलीसिया के रूबरू किया जाता है, लेकिन ये एक तरह की कमिटमेंट होती है अपने आसमानी बाप के साथ कि फिर आइंदा को मैं गुनाह नहीं करूंगा या फिर गुनाह की तरफ रागब नहीं होऊंगा। और फिर मैं तो अक्सर एक बड़ी स्टेटमेंट देता हूं कि बपतिस्मे के बगैर अपने आप को मसीही कहना ही मुकम्मल नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा जो है ये रूबरू लोगों के सामने इकरार होता है कि आज से मैंने यीशु को अपनी जिंदगी में ले लिया है, मैंने यीशु को अपनी जिंदगी में पहन लिया है। आज से मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। पौलुस रसूल की ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब तक आप यीशु मसीह को पहनेंगे नहीं, जब तक आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेंगे नहीं, जब तक पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर आएगा नहीं, फिर जब आप कुछ गलत करने लगेंगे तब तक फिर वो रोकेगा कैसे? पाक रूह जब जिंदगी में आता है तो फिर वो हमें अच्छाई से बुराई से उसकी तमीज करवाता है। जब आप कुछ गलत करने लगते हैं फिर आपके अंदर से एक आवाज आती है कि बेटा ये तुझे नहीं करना, क्योंकि तूने बपतिस्मा लिया है, तूने इकरार किया था, लोगों के रूबरू खादिम के रूबरू तूने कहा था आइंदा को मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। फिर अंदर से जब आवाज आती है, आपका जमीर जब आपको अंदर से झिझोड़ता है कि तुझे ये नहीं करना, फिर हम 90% गुनाह करने से रुक जाते हैं, 90% हम गुनाह करने से रुक जाते हैं। कुछ 10% ऐसा होता है कि हमसे फिर भी बड़ा कंट्रोल करने के बावजूद भी वो गुनाह हो जाता है। लेकिन अगर बपतिस्मा नहीं लेते, अगर इस फरमाबरदारी को पूरा नहीं करते, तो फिर अंदर से आवाज भी नहीं आती और फिर हम अक्सर कहते हैं
कोनी जिथे इन्ने गुनाह कीते ने एक होर हो जाएगा तो कुछ नहीं होता। वो जो 90% वाली बात है ना, उस हिस्से में आप लोग आते नहीं है कि अब मैं अपने आप को रोक लूं, क्योंकि अब मैं एक चर्च का हिस्सा हूं, अब मैं खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी बसर करने वाला एक मसीही बन चुका हूं। फिर हम पूरी तरह से अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर हम गुनाह करते चले जाते हैं और एक वक्त के बाद फिर गुनाह में ही मर जाते हैं। मैंने पिछले दिनों में यहां से मुझे फीडबैक मिले हैं कुछ लोगों से कि कुछ फैमिलीज ने कहा कि पादरी साहब तो शायद लगता है मुझ पे ही तालीम देते हैं, पादरी साहब तो शायद मेरे ना कोई दुश्मनी है। देखिए, अगर यहां से कोई शराब पीता होगा, मैं शराब पे शर्मन दूंगा, तो ये क्या फर्दन उसके लिए कोई अटैक है? मैंने उस एक बंदे के लिए शर्मन दिया, लेकिन उसे क्या लगेगा कि पादरी साहब ने आज मेरे ते कलाम सुना देता है, और वो क्या करेगा, हो सकता है अगले संडे अगले इतवार को फिर चर्च ना आए कि पादरी साहब तो मेरे ते सरमन देंदे ने। लेकिन पादरी साहब आप पे सरमन नहीं देते, इसके अंदर से खुदा का कलाम जो है आपके उस गुनाह के बारे में बात करता है और यह तालीम देता है कि उसके उस गुनाह को उसके सामने रख दे ताकि वो उस गुनाह से तौबा करे, तौबा करने के बाद बपतिस्मा ले और मुझ में जिंदगी बसर करना शुरू कर दे। ऐसे ही बाजुकात कुछ बहनों को भी शायद कोई एतराज होता हो, क्योंकि बाजुकात जब शर्मन दे रहे होते हैं तो बाइबल के अंदर लिखा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का पाक रूह है जो तुम में से बोलता है। अक्सर मिसेस गिल अभी भी पूछ लें, वो कहती हैं कि जब आप बैठे होते हैं हवाला कुछ निकालते हैं, सामने कुछ पढ़ देते हैं जाके, मतलब ये होता है कि मैं स्टडी कुछ करता हूं लेकिन जो अंदर है वो यहां पर जब खड़ा होता हूं वो कहता है नहीं ये वाली तालीम दे। वो ऑन द स्पॉट पुलपट पे आके मेरी वो जितनी भी स्टडी मैं तैयार करता हूं वो पूरी चेंज कर देता है। वो कहता है नहीं, लोगों को इस चीज की जरूरत है, तू इस पे तालीम दे। तो फिर मैं अपनी नहीं सुन सकता, किसकी सुनूंगा? पाकरू की सुनूंगा। यही बात मैं आज बपतिस्मे की तालीम देते हुए आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि पाकरू आप लोगों से तब बात करेगा, आपकी जिंदगियों के अंदर तब स्टे करेगा, बैठ जाएगा और आपको रोकेगा कुछ गलत करने से जब आप लोग बपतिस्मा ले लेंगे। जब बपतिस्मा लेंगे उसके बाद पाकरू आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू करेगा। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरी जिंदगी पर मेरा कंट्रोल ना हो बल्कि पाकरू का मेरी जिंदगी पे कंट्रोल हो? हालेलुया। आप सब चाहते हैं कि मेरी जिंदगी को कोई दूसरा तीसरा कंट्रोल ना करे, इवन दैट कि मेरी खुद की नाकस अकल भी मेरी जिंदगी को कंट्रोल ना करे और सिर्फ खुदा का पाकरू मुझे कंट्रोल करे। तो फिर उसके लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। और बपतिस्मा लेने के बाद, क्योंकि तब हम इकरार करते हैं गुनाह करने से कि हम गुनाह नहीं करेंगे, फिर उसके बाद गुनाह से बाज रहना भी हमारे लिए जरूरी है। होड़ ओ बंदे हाथ चुको जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। पादरी साहब इनके नाम लिख लीजिएगा अभी, ठीक है? अगले संडे खजूरों का इतवार है, हम सुबह का जुलूस निकालेंगे, ठीक है? जुलूस निकालने के बाद हम लोग एक जगह डिसाइड करेंगे और वहां पर बपतिस्मे लेने के लिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हैं आप लोग? हाँ जी। अच्छा, अब वो लोग हाथ खड़ा करेंगे, जरा गौर ना सुने आज। अभी वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने पानी में वो लेटने वाला बपतिस्मा नहीं लिया, छिड़कने वाला लिया है या बचपन में लिया है। अच्छा, चले हाथ नीचे करेंगे, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ओके, इस पे बात करते हैं, बाइबल में से बात करते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को स्टडी करते हैं ना,
खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए दरियाए यरदन पर गए। किससे बपतिस्मा लिया? यूहन्ना नबी से। और बाइबल के अंदर लिखा है कि वो उतरे कहां? पानी के अंदर। जब पानी के अंदर उतरने के बाद जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दे दिया और जैसे ही वो पानी से बाहर आए, बाइबल के अंदर लिखा है कि आसमान से एक आवाज आई। कौन सी आवाज आई? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और फिर उसके ऊपर पाखरू जो है वो कबूतर की सूरत में किसके ऊपर उतरा? यीशु मसीह के ऊपर। और जरा ध्यान ना गल सुनना, हम किसके फॉलोवर हैं? हम किसके पीछे चलने वाले हैं? यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। और बाइबल कहती है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। हमने किसके नक्शे कदम पर चलना है? यीशु के नक्शे कदम पर। तो यीशु मसीह ने क्या किया? पानी के अंदर उतरे हैं। उसके बाद ऊपर से एक कनेक्शन जुड़ा है कि ये मेरा बेटा है। जब आप यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं ना, वहां पे लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने बेटे बेटियां होने का हक बख्शा। जिसने उसे कबूल किया। और कबूल करने का जो तरीकाकार है वो है पानी के अंदर उतरना, अपने गुनाहों का इकरार करना। इस तरह से उसके बाद फिर आप उसके बेटे बेटियां कहलाएंगे, बन जाएंगे। और फिर बपतिस्मा लेने के बाद जैसे ही यीशु ऊपर आए तो उसके बाद फिर पाखरू उनके ऊपर नाजिल हुआ। ऐसे ही जब हमें भी सेम एज इट इज जैसे यीशु ने किया वैसे ही जब हम लोगों ने करना है, उसके बाद हम इस पूरी शरीयत को, इस पूरे कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे। अब जो मैंने हवाला पढ़ा था, इस हवाले को एक बार फिर से पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। और अभी जरा इसको मैं 2-3 मिनट के अंदर समझा दूंगा कि ये बेसिकली क्या कह रहा है, यहां पे बेसिकली क्या करने के लिए कहा गया है। अब जो हवाला पढ़ा था इसको एक बार फिर से पढ़ने लगा हूं। यहां पे लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। यहां पर मौत में शामिल होने का बपतिस्मा पता क्या है? मुर्दे को क्या करते हैं? मुर्दे को खड़ा करते कि लिटाते हैं? मुर्दे को लिटाते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं कि जब हम पानी के अंदर लेटते हैं ना, पानी के अंदर जाते हैं, लेटते हैं, तो ये इस बात के मुशाबा है कि अब मैं मसीह यीशु में दफन हो गया हूं। क्या हो गया हूं? मसीह यीशु में दफन हो गया हूं। और जब हम पानी में से उसको बाहर निकालते हैं तो ये इस बात की अलामत होता है कि जैसे मुर्दे आखिरी वक्त में कब्रों में से ऐसे बाहर उठाए जाएंगे, ऐसे ही ये इस बात की अलामत है कि पानी में से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आप नई जिंदगी के अंदर शामिल हो जाते हैं। पुरानी जिंदगी आपकी जाती रहती है। करंथियों का खत पढ़े 5वें बाब की 17वीं आयत के अंदर लिखा है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आते हैं तो फिर पुरानी इंसानियत जाती रहती है, पुरानी चीजें जाती रहती हैं और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। यीशु मसीह में नए हो जाते हैं, नई जिंदगी मिल जाती है। इसलिए जब हम पानी में उतरते हैं, पानी में आपको लिटाया जाता है, लिटाने के बाद आपको ऊपर निकाला जाता है, तो यीशु मसीह में दफन होने के बाद पुरानी इंसानियत डेड हो जाती है, मुर्दा हो जाती है। और फिर उसके बाद फिर हम नए इंसान बनकर पानी में से बाहर आते हैं और फिर नए इंसान बन के खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आई? ओके हो गया जी? कोई सवाल हो किसी का? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। मतलब बाहर जाके किसी से जो पूछेंगे कि यार इंज नहीं इंज सी, तो अभी मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। हाँ, किसी का कोई सवाल नहीं है?
किसी का कोई एतराज हो? सवाल आमीन हालेलुया। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आइए जोरदार ताली बजाएंगे खुदा के कलाम।